Hello students, today we are going to start first chapter of class 10th chemistry, which is chemical reactions and equations. Before proceeding further, I would like to introduce all of you from the syllabus of the chapter कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सिलेबस क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो सिलेबस ऑफ द चैप्टर इज as its name suggests that it is chemical reactions and equations. So this chapter is all about chemical reactions, types of reactions and chemical equations and balancing of those. So let us take one by one. Syllabus of the chapter is chemical equations. Here we will take two type of equations, unbalanced chemical equations and balanced chemical equations. Unbalanced chemical equation is also known as skeletal chemical equation. Then balancing of chemical equations. We will get unbalanced chemical equations and we have to balance those equations. Okay. Then next, types of chemical reactions, very important topic of the chapter. We have to study different types of chemical reactions. Those chemical reactions are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, neutralization reaction, oxidation and reduction reactions, and then redox reaction. Last but not the least, effects of oxidation reactions in everyday life, in which we have to cover two topics, corrosion and rancidity. Here under the corrosion we have also studied rusting, तो हमें rusting भी पढ़ना है, and prevention of rusting and corrosion also. Similarly, rancidity and prevention of rancidity. Okay, so now I think you all have to familiar with the syllabus of the chapter. Now let us take all the topics one by one. Okay, are you ready? Now chemical reactions. So first of all we have to know what chemical reactions are. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, तभी तो हम इस चैप्टर को आगे पढ़ पाएंगे. इसका नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट केमिकल रिएक्शंस आर. वी आर फैमिलियर विद द चेंजेस. इन 9th क्लास वी स्टडीड अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स. We know physical and chemical. So what is the difference between these changes? तो physical change में क्या होता है? No new substance is formed. Physical change में कोई भी new substance form नहीं होता है. But in chemical change new substance formed. Like आपके पास में water है, आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, it is converted into ice. So only the state of मैटर चेंज, लिक्विड से वो किस में गया? सॉलिड में गया. बट वो वाटर था तो वाटर ही रहा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ. बट जब मैंने दूध को जमाया और उससे दही बना, व्हेन मिल्क टर्न्ड इनटू द कर्ड, देन न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड. व्हेन वी टेक आइस from the fridge and let it put on the table, after some time it will be melted and converted into water. But can you convert curd into the milk? Say, tell me, can you convert curd into the milk? No, you cannot, because curd is the new substance. Curd has chemical composition totally different from that of the milk. So when new substances are formed and we cannot easily revert the process, that process is called chemical change. Like rusting of iron, iron के ऊपर rust हो गया, it is a chemical change. Rusting is another substance, iron is another substance, and you cannot convert the rust into the iron.
तो वेन एवर केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, तो केमिकल चेंज क्या होता है समझ आया। केमिकल चेंज में दो चीजें मेनली याद रखना है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड दीज कैन नॉट बी इजिली रिवर्ट। Those chemical changes are called chemical reactions. Chemical reactions कुछ नया नहीं है, वो जो chemical change हुआ that chemical change is called chemical reaction. Okay? तो फिर अब आप बोलेंगे सर chemical equation भी तो है, तो chemical equation क्या होता है? तो to represent that chemical reaction we use chemical equation. केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। इन 9th क्लास यू स्टडीड दैट बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज केमिकल चेंज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की यदि हम बात करें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो हमें पता है किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन दैट यू हैव थ्री थिंग्स हियर। वन इज arrowhead which is in between and some atoms of element from left hand side of the arrowhead and some atoms of elements right hand side to the arrowhead. So generally this equation can be represented as a plus b gives c plus d. Here the elements or atoms of elements left hand side of the arrowhead are called as reactants. क्या बोलते हैं इनको, reactants. And atoms of elements present right side to the arrowhead are called products. Is it clear? So what is a chemical equation? It is the representation of chemical reaction. Chemical reaction का जो representation होता है उसको chemical equation बोलते हैं। तो why do we need chemical equation? Chemical equations की जरूरत क्यों पड़ी, जरा उस पर हम आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि chemical equations को जानने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। उससे पहले इसको नोट कर लो। हम वापस यहीं पे आते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यदि मेरे पास केमिकल इक्वेशन ना होता तो क्या कैसे इसको रिप्रेजेंट करते, बर्निंग ऑफ केमिकल, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो हमें पूरा लिखना पड़ता मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से हमें पूरा लिखना पड़ता। लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस वी कैन इजीली रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसके डिफरेंट टाइप्स में फर्स्ट आपको आता है वर्ड इक्वेशन। क्या आता है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को वर्ड इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है पहले मैं वो देखता हूं। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हियर मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, सो द elements which reacts are called reactants. Reactants, why reactants? Because they are reacting. So here magnesium is reacting with oxygen, so these are two reactants, and in between there will be
an arrowhead, and what is the product? Product is magnesium oxide, तो वो इधर आ जाएगा, magnesium oxide. It is called word equation. What is a word equation? An equation in which the reactants and products are expressed in words. Now it is converted into chemical equation. तो what is the chemical equation? ये भी है. Word equation is now converted into symbolic equation. किस equation में convert होगा? Symbolic equation. तो what is a symbolic equation? It is an equation in which the chemical symbols or chemical formulae of elements and compounds are used. Okay, so let us convert it into the symbolic form. It is word form. It is what? It is word form or word equation. Now convert this into symbolic equation. Here we have to use symbols. So what is the chemical symbol of magnesium? We know it is Mg. Plus for oxygen it is O2. Magnesium oxide, it is MgO. So it is called symbolic chemical equation. Okay. Now look at here. आपको इसमें कुछ ऐसा दिखेगा कि number of atoms to the right hand side means in the reactants are not equal to the number of atoms in the product. Here oxygen are 2, but here we have only 1 oxygen. Okay, so this equation is not balanced chemical equation. ये balanced chemical equation नहीं है. It is an unbalanced chemical equation. It is also known as skeleton equation. So here comes the another topic, balanced and unbalanced chemical equations. So let us study balanced and unbalanced chemical equations. Before that, pause the video to note it down. Now balanced and unbalanced chemical equations. तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आप कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें, लिखने में ज़्यादा न दें. यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरे पास में इस चैप्टर के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं. कमेंट ऑन द वीडियो एंड यू विल गेट द नोट्स. कमेंट योर व्हाट्सएप नंबर टू द वीडियो, आई विल डायरेक्टली सेंड द नोट्स टू यू. ओके, सो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे. इसमें सिर्फ आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें. ओके, सो व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्या होते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस? तो जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में, एक बार फिर से उस केमिकल इक्वेशन को हम यहाँ पर लेते हैं. हियर मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन to give you magnesium oxide. It is a chemical equation which gives us an idea कि what is happening in the reaction. एक वो इक्वेशन जो हमें सिर्फ ये बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है. It is called just an equation. और ये बैलेंस्ड है कि नहीं है देखेंगे. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट शुड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, बट हियर इट इज नॉट एज आई एक्सप्लेन्ड कि number of oxygens in the reactant are 2 but in the product it is only 1. So it is an unbalanced chemical equation. But इसका भी अपना एक importance है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि chemical reaction में कौन कौन से elements या compounds react कर रहे हैं और क्या form हो रहा है. So इसका भी अपना एक importance है. So now we have to balance this chemical equation. It is unbalanced chemical equation. It is also known as skeletal chemical equation.
ओके, सो नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। तो यहाँ पे एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, विच लॉ फॉलोज व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हमें ये जानना जरूरी है। तो व्हाई शुड वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? बिकॉज क्लास 9th याद कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Whenever a chemical reaction takes place, total mass of reactants is equal to total mass of products. जितना reactants का मास है उतना ही किसका मास होना चाहिए? प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट्स का मास अलग हो जाए और प्रोडक्ट का मास अलग हो जाए। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज विच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपको याद रखना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इट ऑलवेज फॉलोज और ऑबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इट स्टेटमेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमारा मेन टास्क है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपको उसको समझना है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। नाउ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ओके, तो प्रीवियस इक्वेशन ही ले लेते हैं, पहले उसको बैलेंस करना देखते हैं। सपोज हियर वी हैव Mg plus O2 gives MgO। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हमें जिधर नंबर ऑफ एटम्स कम दिखते हैं उधर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, फिर हम इफेक्ट देखते हैं कि दूसरे एटम्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इनको बैलेंसिंग करना है। इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इनकी बैलेंसिंग करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं उन सभी फॉर्मूले को आपको ब्रैकेट में डालना है। ओके, सो फ्रॉम हियर Mg plus O2 gives MgO। ओके, नाउ अब क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट। स्टेप 2, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट,
इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये एक छोटा सा हम टेबल बना लेंगे। तो हियर वी हैव 3 एलिमेंट्स, नो वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट ऑफ मैग्नीशियम? ओनली 1 एटम। इन द प्रोडक्ट 1 एटम। ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट 2 atoms. In the product it is only 1. Okay. तो ये टेबल बनाने के बाद में it is clear that number of oxygen are different. किधर कम है? प्रोडक्ट में कम है। कितना डिफरेंस है? डबल का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस है उतने का हम मल्टीप्लाई करेंगे। Now balancing of an element which has different number of atoms. Here that element is oxygen. So step 3, so here in third step we will balance oxygen. So write this equation, Mg with bracket plus O2 gives MgO. Here it is twice, so twice कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया MgO को। Now further we have to analyze the equation. We have to count the number of atoms in the reactant and in the product. क्योंकि जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन एटम्स 2 हुआ, बट उसके साथ साथ मैग्नीशियम एटम भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो नाउ दिस टेबल becomes like this. Oxygen atoms become 2 in the reactant and magnesium atoms also becomes 2. अब देखिए कहां पर डिफरेंस है? इन द मैग्नीशियम एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। देखिए रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 ही है और यहां पर क्या है? 2 है। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई मैग्नीशियम एटम इन द रिएक्टेंट साइड ऑल्सो। ओके, नाउ अगेन एनालाइज द इक्वेशन and modify the table. Here magnesium are 2, oxygen 2, here also 2, 2. Whenever these atoms are equal, our equation has been balanced. Now in the final step we have to remove these brackets. Brackets को remove कर देंगे तो we will get 2mg plus O2 gives 2mgO. It is our balanced chemical equation. ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये फर्स्ट केमिकल इक्वेशन था जिसकी हमने बैलेंसिंग की। यदि आपको 20% भी समझ आया हो तो समझ जाना कि 1-2 क्वेश्चंस में आप 100% समझ जाएंगे, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें समझ आएंगी। ओके, आगे चल के तो ये हमें टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वी विल जस्ट सॉल्व और बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय सीइंग ओवर इट। ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बैलेंसिंग का। हियर सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ऑल द फॉर्मूले एंड सिंबल्स इन द ब्रैकेट। So it is first step, Na plus H2O gives NaOH plus H2. Now analyze the number of
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो पूरा उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा टेबल बनाता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं LHS साइड और यहाँ पे ले लेते हैं RHS साइड। ये तो हम समझ जाएंगे ना कि क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ काउंट द नंबर्स। सोडियम इज 1 here and here it is also 1. Now hydrogen in reactant is 2, here it is 3. Oxygen 1, here it is also 1. ठीक है, अब टेबल की तरफ हम देखते हैं जरा, तो किस चीज में डिफरेंस दिख रहा है? सोडियम सेम है, ऑक्सीजन सेम है, डिफरेंस इन हाइड्रोजन। तो जिसमें डिफरेंस है उसको हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। और एक मैं आपको की बताता हूं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, जिससे आपकी बैलेंसिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। वो है कि आपको कभी भी जब बैलेंसिंग करनी है तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो 2 के फॉर्म में आते हैं, X2 के फॉर्म में, लाइक O2, H2, Cl2, तो जो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर्स यदि ऑड हैं तो उनको इवन कर दो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसा करने से केमिकल इक्वेशन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। क्या करना है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को हमें इवन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ओनली। तो हाइड्रोजन एटम कहां पर है उसको 2 करो, यहां पर हाइड्रोजन एटम कहां पर ऑड है उसको इवन बनाओ। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम ऑड है, हियर इट इज ऑड, सो हियर वी हैव टू मेक इट इवन, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब ध्यान से देखो, अब जब आपने 2 से कहीं पे मल्टीप्लाई किया है तो इसका इफेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर नहीं आया है, दिस इफेक्ट सोडियम एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। सो चेंज द टेबल। क्या क्या चेंज हुआ? सोडियम एटम्स 2 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हुआ एंड हाइड्रोजन भी 2 हुआ। किधर? इन द प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन यहां पर 2 हुआ एंड 2 यहां से, तो कितना हो गया? 4। तो प्रोडक्ट साइड में सारे एटम्स चेंज हो गए। सोडियम बिकम्स 2, ऑक्सीजन बिकम्स 2 एंड हाइड्रोजन बिकम्स 2 plus 2, 4. Okay, but there is no any change in the reactant side. Now analyze the table carefully. Here at the right hand side the number of atoms of each element is twice the number of atoms in the reactants. So what will happen now? अभी आपको देखना है कि प्रोडक्ट साइड में इनको बैलेंस करना है। हाउ? सोडियम इज ट्वाइस, सो हियर सोडियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन ट्वाइस एंड ऑक्सीजन ऑल्सो ट्वाइस। अभी मैंने आपको बताया था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को इवन करना है। हियर ऑक्सीजन इज अ डाई एटॉमिक विच इज ऑड, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ अगेन एनालाइज द इक्वेशन and modify our table. So what will happen now? Sodium becomes twice 2, hydrogen becomes 2 to the 4 and oxygen becomes 2. Here the number of atoms of each element are equal, so our chemical equation is balanced. So it is our final balanced chemical equation. From here we will remove the brackets, so we will get 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. It is our final balanced chemical equation.
Now we will take another example. Here iron reacts with water to form iron oxide and hydrogen gas. कैसे करेंगे बैलेंसिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स लगा लीजिए, ब्रैकेट्स लगा देते हैं, एंड देन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. एलिमेंट LHS एंड RHS. ओके, एलिमेंट्स क्या क्या है? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Count numbers. Here it is 1, here it is 3. Hydrogen 2, 2. Oxygen 1 and 4. Okay. So here we get the difference in the number of two atoms. First is iron and another is oxygen. तो याद कीजिए, diatomic molecule should not be odd. Okay, so here oxygen is diatomic and it is in odd numbers. So now we will change the number of oxygen atoms according to our requirement, which is 4. Oxygen atoms कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए. तो we will multiply this where we have oxygen by 4. Okay, जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, then hydrogen atoms also changed. These are changed from 2 to 4 to 8. So now we'll note down here the changes. Oxygen becomes 4 and hydrogen becomes 8. Now we have to balance hydrogen atoms. Here it is 4 to 8. Here यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या हो गया? 4 to 8. Now there is difference in number of iron atoms only. Iron here it is 3, तो here it is separately 3. ठीक है, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली भी बैलेंस कर सकते हैं. Now remove the brackets, so we get 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. It is our balanced chemical equation. That's all from today's class. We'll discuss another things in the next video. Bye bye.